اہم خبر ہے، بھارت کا پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا ہولناک منصوبہ بے نقاب۔ بھارت نے خطے کے ممالک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے بھارت کے دہشت گرد گروہ اور بھارتی ہینڈلرز سہولت کاروں جو کہ دہشت گردانہ کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے ان کو کامیابی کے ساتھ بے نقاب کر دیا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے شواہد کی بنیاد پر بے نقاب کیا کہ محمد ریاض اور شاہد لطیف کے قتل میں بھارتی شہری اشوک کمار آنند اور یوگیش کمار براہ راست ملوث ہیں۔ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محمد ریاض اور شاہد لطیف کے ٹارگٹ کلرز کو ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں گرفتار کیا۔ قتل میں ملوث ٹارگٹ کلرز ان کے ساتھیوں اور سہولت کاروں کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کی جانب سے یہ نیوز کانفرنس کی گئی جس میں انکشاف کیا گیا ہے۔ سلمان، سیکرٹری خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تمام تر جو حقائق ہیں وہ سامنے نہیں لائے جا سکتے، مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جب تمام تر تحقیقات مکمل ہو جائیں تو بین الاقوامی برادری کو ساتھ ملا کر یہ معاملہ آگے بڑھانا چاہیے؟ جی بالکل، بین الاقوامی برادری تو بذات خود ان دونوں ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بھارت کے حوالے سے ڈٹی ہوئی ہے، چاہے آپ امریکہ کی بات کریں چاہے کینیڈا کی بات کریں۔ یہی نیوز اب سے کچھ دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہی مسئلہ ہے، یہی چیز ہے کہ تمام تر ٹھوس شواہد موجود ہیں، امریکہ کے پاس بھی موجود ہیں، کینیڈا کے پاس بھی موجود ہیں، اور اس حد تک موجود ہیں کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ سال جو G20 کا اجلاس ہوا تھا بھارت کے اندر، وہ کس قدر بدمزگی کا شکار ہوا۔ کینیڈن وزیر اعظم کے ساتھ بھارت نے باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر لکھی پڑی بات ہے کہ بدسلوکی کی، بدتمیزی کی گئی۔ اسی طرح سے امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ تمام تر بھارت کے کالے کرتوت جب سامنے آئے تو انہوں نے اپنی جو اعلیٰ ترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے لوگوں کو، ان کے سربراہوں کو بھارت بھیجا کہ وہ بھارت جا کے بھارت کے کہیں کہ عقل کے ناخن لے، ہوش کے ناخن لے کہ کس طرح سے یہ بھارت کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ، امریکہ اور اگر ہم بات کریں کینیڈا کی تو وہ تو سو کالڈ دوست ممالک ہے، لیکن وہاں پر بھی بھارت جو ہے وہ یہ کالے کرتوت کرنے سے باز نہیں آیا۔ تو یہ پوری دنیا جو ہے بات جانتی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دنیا نے شاید اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، دنیا کی شاید آنکھوں کے اوپر ایک پٹی جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے، کس طرح سے بھارت کی تمام تر جو گھناؤنی حرکتیں ہیں وہ نظر انداز کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر ہے لیکن دیر نہیں، آہستہ آہستہ دنیا کو پتہ لگے گا کہ جس طرح سے وہ ہندوتوا کے فریق کو بھارت کے اندر جو ہے وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، چین کے مقابلے کے اندر بھارت کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہی بھارت ہے جو طاقت ملنے پر، یہی بھارت ہے جو کہ ذرا سے اس کو اگر آپ نے اسپیس دی تو یہی بھارت ہے وہ ان کے ہی گلے پکڑے گا جو آج اس کو پال رہے ہیں، جو آج اس کو دودھ پلا کر پال رہے ہیں۔ اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں بھارت کی وہ پوری دنیا جانتی ہے، کوئی نئی بات اب نہیں ہے۔ پاکستان نے تو مکمل طور پر تحقیقات کے ساتھ، ٹھوس شواہد کے ساتھ یہ چیز سامنے رکھی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں دیگر ممالک کی، کینیڈا کی، امریکہ کی، تو ان ممالک کی نیوزی لینڈ کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ، برٹن کے ساتھ ایک 5 آئیز نامی انٹیلیجنس شیئرنگ آرگنائزیشن ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کے ایک انفراسٹرکچر، ایک میکنزم، ایک رجیم موجود ہے جہاں پر یہ پانچوں ممالک جو ہیں 5 آئیز کے نام سے انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی یہ ٹھوس شواہد جو ہیں وہ بدقسمتی سے موجود ہیں یا خوش قسمتی سے موجود ہیں، لیکن بھارت کے کالے کرتوتوں پر ویسٹ کی طرف سے، مغربی ممالک کی طرف سے مکمل طور پر فی الحال جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ بھارت کی ان تمام تر کالے کرتوتوں کے باوجود اس کو کچھ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ اس وقت ویسٹ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھارت چین کے خلاف ان کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال کا کردار ادا کرے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہندوتوا کا جو آسیب یا افریت وہ پال رہے ہیں، اس کو پوری پرورش اس کی جا رہی ہے۔ یہی افریت جو ہے جب وہ اپنے کٹر قسم کے نظریات ہیں وہ لے کر آگے بڑھے گا، وہ انہی مغربی ممالک کو بھی ڈسے گا۔ پاکستان کے پاس سلمان، آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں مستقبل قریب میں بھارت میں بھی چناؤ ہے، انتخابات ہیں، تو وہاں پر اس طرح کی چیزوں کو ابھارا جا رہا ہے مزید؟ جی ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا، آپ دیکھیں نا کہ آج یا کل ابھی بھارت کی جانب سے 22 جنوری کو جو انہوں نے رام مندر کا افتتاح کیا، وہ تو در حقیقت ایک بہت بڑی الیکشن کیمپین ہے، اور آج انہوں نے مودی جی نے باضابطہ طور پر 1900 کروڑ روپے کے منصوبوں کے ساتھ جو ہے الیکشن کیمپین کا آغاز کیا۔ تو یہ کیمپین اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے تو بہت زیادہ فیور میں جاتی ہیں۔ یہ تو مودی جی اپنے آپ کو بہت زیادہ سپر مین، ماچو مین بنا کر پیش کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بھارت کے دشمنوں کو چن چن کر
खत्म कर रहे हैं, किस तरह से भारत के दुश्मनों का खात्मा किया जा रहा है, तो ये भारतीय गवर्नमेंट के लिए या भारत के अवाम के लिए बिल्कुल भी बाइस शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर तो खूब ढोल पीटे जाएंगे, मोदी जी की वाहवाह होगी, मोदी जी की जय जयकार होगी कि किस तरह से वो भारत के दुश्मनों को दुश्मन ममालिक की सरजमीन के ऊपर या दोस्त ममालिक की सरजमीन के ऊपर भी चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा उनके हाथ में एक आप कह लें कि प्रोपेगेंडा टूल जो है वो हाथ में आया है। ओपनली तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एंडोर्स नहीं करेगी, इसको डिनाई करेगी, लेकिन बीजेपी की जो बी क्लास लीडरशिप है, सी क्लास लीडरशिप है, इवन ए क्लास लीडरशिप भी है, वो भी इसके ऊपर खूब जो है अवाम से वोट बटोरने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देखें जी हम भारत के दुश्मनों को, दुश्मन ममालिक हो, दोस्त ममालिक हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, हम कहीं पर भारत के दुश्मनों को नहीं छोड़ते और वहां पर उन दुश्मनों को जो है हम चाहे हमें किराए के कातिल हायर करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम उनको वहां पे ठिकाने लगाने का पूरा बंदोबस्त करने की सलाहियत रखते हैं। और ना सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि उसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी सेक्रेटरी खारजा जैसे बता रहे थे कि 2 कत्ल जो है उसके हवाले से मुकम्मल ठोस शवाहिद वगैरह सामने आए हैं। मोहम्मद लतीफ का कत्ल है, दूसरे पाकिस्तानी शहरी का कत्ल है, तो उस हवाले से तो चीजें उन्होंने बयान कर दी, लेकिन ऐसे कई वाकयात हैं टारगेट किलिंग के जो कि अभी भी जेर तफ्तीश है और उसके हवाले से पाकिस्तानी शहरी इदारे जो है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के पास उनके हवाले से भी शवाहिद मौजूद है जो कि यकीनन वक्त आने के ऊपर साथ साथ सामने आएंगे। तो भारत के लिए इसमें आप ये मत समझें कि भारत शर्मिंदा होगा या भारत को कोई परेशानी उठानी पड़ेगी। वो लोग बहुत खुश होंगे कि जैसे ही 2 पाकिस्तानी शहरी कत्ल हुए, सियालकोट में कत्ल, डस्का में कत्ल हुआ या रावलाकोट के अंदर पाकिस्तानी शहरी का कत्ल हुआ, तो जो मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हम सब उनके बारे में जानते हैं कि वहां पर किस तरह से फौरन जो है जैसे वारदात एग्जीक्यूट हुई, कामयाबी हुई, फौरन ही उन्होंने जो ढोल बाजे जो है वो बजाना शुरू कर दी कि किस तरह से कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया कि कश्मीर के अंदर जो लोग बात करते थे उनका खात्मा कर दिया, या पाकिस्तान के अंदर मखसूस जो तंजीमें हैं उनके हवाले से नाम लेकर कहा गया कि फलां तंजीम के ओहदेदार को हमने खत्म कर दिया है। तो ये बड़ी ही जो है भारत के लिए, भारतीय जो एक इंटरनेशनल टेररिज्म है वो सामने आया है। पाकिस्तान तो इससे बहुत पहले का मुतासर है, कोई आज का मुतासर नहीं है। बांग्लादेश बनाने में जो कुछ उन्होंने किया, मुक्ति बानी को उन्होंने प्रमोट किया, मुक्ति बानी की ट्रेनिंग की, वो भी एक टेररिज्म था, एक्ट ऑफ टेररिज्म था। और वो एक्ट ऑफ टेररिज्म को बड़ी खूबसूरती से, बड़े खुश होकर उन करते हैं। ढाका में जाके मोदी जी बयान देते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान तोड़ने के अंदर किरदार अदा किया, पाकिस्तान तोड़ने के लिए मुक्ति बानी बनाई। इसी तरह आप देखें रिसेंट अगर हम थोड़ा सा आए तो पाकिस्तान के अंदर जो कुलभूषण जादेव पकड़ा गया वो क्या था, वो भी यही कुछ था। वो भी भारत की जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, भारत की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसका चलता फिरता सबूत था, चलता फिरता इश्तिहार था जो कि पाकिस्तान ने उसको पकड़ा, तमाम तर सबूतों के साथ पकड़ा। इतराफी बयान उसका मौजूद है, उसके तमाम तर काले करतूत मौजूद है, पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद है। और अब जो पाकिस्तान के अंदर एजेंट्स पकड़े गए हैं, ये तो फिर आप कह लें कि किसी तीसरे मुल्क के अंदर बैठे हुए थे, तीसरे मुल्क के अंदर बैठ के ये कार्रवाइयां कर रहे थे और बदकिस्मती से यहाँ पर उनको किराए के कातिल या भाड़े के टट्टू जो है वो मिल गए और वहां पर उन्होंने उनको पैसे देकर पाकिस्तानी ही शहरियों को, पाकिस्तानी शहरियों से कत्ल करवाने की साजिश की। तो इसके ऊपर यकीनी तौर पर हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी नेटवर्क हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हैं, वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि विजिलेंट थे। उन्होंने इनको पकड़ लिया, इनको रंगे हाथों तो नहीं पकड़ सके, लेकिन बहरहाल इनको फरार होने नहीं दिया गया मुल्क से। और इनको पकड़ने के बाद जो है इनसे तमाम तर चीजें जो है वो उगलवा ली गई हैं। और ऐसे बहुत सारे दीगर केसेस जो है वो भी इस वक्त सिक्योरिटी इदारों के पास मौजूद हैं। जी अच्छा सलमान अवान, सेक्रेटरी खारजा की जानिब से एक बहुत अहम बात भी की गई है इस मीडिया ब्रीफिंग में कि ये भी पॉसिबल है कि भारत की जानिब से इस तरह के मजीद अहदाफ भी हूँ, तो इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है या कोई इंफॉर्मेशन है मजीद? जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी इदारे जो हैं, पाकिस्तानी तमाम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान के तमाम जो मुतल्लिका सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा इस हवाले से विजिलेंट हो चुके हैं कि भारत की जानिब से जो टारगेट किलिंग है वो की जा सकती है, टारगेट किलर्स को या किराए के कातिलों को हायर किया जा सकता है। तो हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हर शहरी को, खासतौर पर वो लोग जिनको ज्यादा थ्रेट्स हैं या हमने देखा कि इस किस्म के जो वाकयात सामने आए हैं उसके अंदर मखसूस लोगों को निशाना बनाया गया, तो ऐसे तमाम लोग जो कि पाकिस्तान के शहरी हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनके हवाले से बहुत ज्यादा विजिलेंट है। और जो कुछ भी ह्यूमनली पॉसिबल हो सकेगा हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगी, उनको यकीनी तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। और जो ये नेटवर्क पकड़ा गया है दोनों एजेंट्स का, योगेश कुमार का और उसके साथी एजेंट का, इन या अशोक कुमार का, इन दोनों का जो नेटवर्क पकड़ा गया है, इससे यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा हमें कीमती इंफॉर्मेशन मिली होगी। उसी इंफॉर्मेशन के बारे में सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि फिर वक्त उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे जो नेटवर्क हैं, जो हैंडलर्स हैं, सहूलतकार हैं, उनकी इंफॉर्मेशन सामने आई होगी और हुकूमत पाकिस्तान
पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो इनके खिलाफ यकीनी तौर पर हरकत में आ चुका होगा। आपकी मेरी कंजम्पशन के लिए, आपकी मेरी इंफॉर्मेशन के लिए ये दुनिया के सामने वो बात रखी गई है जो कि बताने की इस वक्त जरूरत है, या जिसको बताया जा सकता है, और या हम कह लें कि जिसके हवाले से पूरे के पूरे सबूत जो है वो मौजूद है। और अभी बहुत सारी केसेस के हवाले से उन्होंने ये कहा कि कुछ चीजें, कुछ बातें जो हैं वो अभी लीगल प्रोसीडिंग्स के तहत भी चल रही हैं, अदालतों के अंदर भी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीजों का भी फिलहाल जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। अच्छा सलमान, आगे इंतखाबात भी आ रहे हैं 8 फरवरी को, तो ये भी कोशिश की जा सकती है कि उसको भी निशाना बनाया जा सके ताकि गैर मुस्तहकम किया जा सके पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, तो ये 8 फरवरी का मौका तो एक बहुत, आप कह लें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस किस्म की कार्रवाइयों के लिए, इस किस्म का फसाद फैलाने के लिए भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान नो डाउट पहले ही पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज हो चुका है। और 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं वो अगर पुरअमन तौर पर मुनक्किद होते हैं, वो पाकिस्तान को स्टेबल करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे, क्योंकि फिर पाकिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत आएगी, और नई हुकूमत आके फिर जो एक मुल्क के अंदर काफी अर्से से डिस्टेबिलिटी चल रही है, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी चल रही है, उसका खात्मा होगा, गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा होगा, और ये सूरत हाल हमारे दुश्मनों को किसी तौर पर कबूल नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा कि अभी कल भी शायद बात हो रही थी कि एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि किस तरह से जो आम इंतखाबात का अमल है, पोलिंग डे के ऊपर सबोटाज किया जा सकता है, इलेक्शन के जो हसास इलाके हैं इलेक्शन के हवाले से, पोलिंग स्टेशन हों, पोलिंग एजेंट्स हों, उनको निशाना बनाया जा सकता है, या दीगर चीजें जो अलर्ट के अंदर जो निशानदेही की गई कि रिजल्ट के हवाले से कुछ चीजें जो है वो खराब की जा सकती हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते बूझते हैं, जाने अनजाने के अंदर जो है वो के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं या हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की भी जरूरत है कि ये 8 फरवरी का दिन अल्लाह ताला करे कि खैर आफियत से गुजर जाए और पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत आए वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का बाइस बने। लेकिन इससे पहले दुश्मनों की पूरी कोशिश होगी, पूरी उनकी कुव्वत लगेगी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, और इलेक्शन का प्रोसेस जो है, जो कि अब होने जा रहा है बिलाखिर, उसको जो है डी ट्रैक कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इस हवाले से यकीनी तौर पर विजिलेंट हैं, एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं, और बहुत सारी चीजों के ऊपर, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर उनकी कड़ी नजर है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर उनकी कड़ी नजर है, ताकि ये मामला जो है बिगड़ने ना पाए। हमें पूरी तवक्को रखनी चाहिए अपने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, ऑपरेटर्स के ऊपर, कि ये सिस्टम जो है वो काम करेगा और इस किस्म के लोगों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, भारत का पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का होलनाक मंसूबा बेनकाब हो चुका है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें आगाह कर रहे थे इस बारे में, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।